باپ کے فوت ہونے کے بعد تایا مجھے اپنی حویلی میں لایا تھا اور حویلی میں لاتے ہی مجھے بند کر دیا۔ یہاں پر مجھے گھٹن کا احساس ہوتا تھا۔ میں کسی طرح سے یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن تایا نے میری شادی اپنے بڑے بیٹے سے طے کر دی تھی۔ میں ایک آزاد لڑکی تھی اور حویلی کی عورتیں گھٹ گھٹ کے زندگی گزار رہی تھی۔ میں ان کی طرح زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ رات کے اندھیرے میں جب میں دیوار پھلانگ کر حویلی سے بھاگنا چاہ رہی تھی، تب تایا کے بڑے بیٹے کی گاڑی میرے آگے آئی اور وہاں سے کچھ گارڈز اترے اور میرے ساتھ۔ وہ سوچ چکی تھی یہاں محض رسوائی ہے، اس لیے اس کو یہ قدم ہر حال میں اٹھانا ہی تھا۔ یہاں کے مکین اسے کسی صورت گھر سے باہر نہیں جانے دیں گے۔ وہ 2 دن پہلے ہی تائی اماں سے اس حوالے سے بات کر چکی تھی اور انہوں نے اسے بہت ہی پیار سے سمجھایا تھا کہ بیٹا اب آپ یہاں سے نہیں جا سکتی جب تک آپ کے تایا ابو اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے، اور ویسے بھی اب آپ کا وہاں جانے کا کیا فائدہ؟ آپ کے بابا تو حیات ہی نہیں ہیں، تو وہاں جا کر آپ کیا کریں گے؟ اور وہ صرف ان کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس کو اپنے مرے ہوئے باپ سے بھی کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ اس کو یاد تھا جب اس کے باپ نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کو ختم کیا تھا۔ ان کو اتنا خیال نہیں آیا تھا کہ اس کی ماں اس وقت حاملہ تھی اور بنا سوچے سمجھے انہیں دھکا دے دیا تھا، جس کے باعث وہ منہ کے بل گری تھی اور چند ہی پل میں اس کی ماں خون سے لت پت ہو گئی تھی، اور اسی وقت ہی بچہ اور ماں دونوں ختم ہو گئے تھے۔ اور اس دن کا دن تھا۔ زمل نے ہمیشہ اپنے باپ سے نفرت جتائی تھی اور ساتھ میں اسے حویلی کے ہر ایک مرد سے نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ یہاں رہنے والے مرد اس کی نگاہ میں جلاد تھے جو جیتی جاگتی عورت کو ختم کر دیتے تھے۔ زمل کی ضد کی وجہ سے اس کا باپ شہر میں ہی رہائش پذیر ہو گیا تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد زمل کے باپ نے اسے محبت دی تھی، لیکن اسے اپنے باپ کی بالکل پرواہ نہیں تھی، اور آج بھی حال یہی تھا۔ تایا ابو، تائی امی، بی بی سائیں اور باقی کزن احباب اس سے ملنے کے لیے اس کے بنگلے پر آ جاتے تھے، لیکن وہ حویلی نہیں جاتی تھی۔ وہاں پر رہنے والے مکین سے وہ نفرت کرنے لگی تھی، اور جیسے جیسے وہ پروان چڑھتی گئی اس کی نفرت مضبوط ہوتی گئی۔ اس کے باپ نے جب اپنی بیٹی کو ان سب سے نفرت کرتے دیکھا تو بالکل ہی ان خاندان والوں سے اس کو دور کر دیا تھا۔ وہ زمل سے پیار کرتے تھے کیونکہ وہ ان کی پہلی اولاد تھی، مگر زمل کو ان سے بے شمار نفرت تھی۔ لیکن اسے معلوم ہی نہیں تھا جب باپ کا سایہ سر سے اٹھتا ہے تو اولاد بالکل اکیلی رہ جاتی ہے، اور یہی حال زمل کے ساتھ ہوا تھا۔ انتقال کے دوسرے دن ہی تایا ابو نے حکم لہجے میں کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ حویلی جاؤ گی۔ زمل انکار کر چکی تھی کہ وہ حویلی نہیں جانا چاہتی، وہ یہیں بنگلے میں رہے گی اور اپنی پڑھائی مکمل کرے گی، اس کو اکیلے خوف نہیں آئے گا۔ مگر تایا ابو زبردستی اسے حویلی لے آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تم ہمارے شاہ نواز کی منگ ہو، اس کی ہونے والی بیوی ہو، تم اکیلے بنگلے میں نہیں رہ سکتی۔ یہاں ڈھیروں ڈھیر ملازم ہیں، ان سب کے درمیان ایک تنہا لڑکی، وہ بھی ہماری خاندان کی رہے، اس چیز کی اجازت ہم کسی صورت نہیں دے سکتے۔ مہمانوں اور دیگر عوام کی وجہ سے زمل خاموش ہو گئی تھی، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ رہ نہیں پائے گی، کیونکہ وہ لوگ الگ دماغ کے انسان تھے اور زمل کی سوچ بہت مختلف تھی۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا اور اسی حویلی میں رہتے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، اور اس 1 ہفتے کے دوران زمل اکتا چکی تھی۔ کئی بار وہ گھر جانے کا تذکرہ کر چکی تھی، لیکن سب ایک ہی بات کہتے تھے کہ تم شاہ نواز کی منگ ہو، تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ اور یہاں موجود ان پٹھانوں کا نظام اس کی سمجھ سے بلا تر تھا۔ شاہ نواز خانزادہ ایک بہت ہی مختلف شخصیت کا انسان تھا۔ اس نے محض اسے ایک ہی بار دیکھا تھا جب اس کی دھاڑ پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو سامنے ہی وہ اپنی بہن کو ڈانٹ رہا تھا، جس کے بال نظر آ رہے تھے۔ اس نے جالی دار دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، اور یہ بھی اس کی غیرت کو گوارا نہیں تھا، کیونکہ حویلی میں مرد ملازم بھی تھے اور گھر کی عورتیں اس چیز کا خیال نہ کرتی تو یہ ان کے مرد کی توہین تھی۔ اسی لمحے کو سوچ کر ہی اس نے غصے سے اپنا دوپٹہ کھینچ کر اپنے بدن سے جدا کیا تھا۔ اس کا دماغ گھوڑے کی رفتار کی مانند کام کر رہا تھا۔ اگر وہ مزید ان لوگوں کے آسرے ہی بیٹھی رہتی تو وہ لوگ کبھی بھی اس کی زندگی برباد کر سکتے تھے، اور وہ اس چیز کی اجازت
किसी को भी नहीं देना चाहती थी। आज उसने ताया अबू से बात करने की कोशिश की थी, उनको समझाने की कोशिश की थी कि यहाँ के लिए नहीं बनी है। वो अलग सोच की मालिक है, उसका रहन सहन सब मुख्तलिफ है, लेकिन उसकी बात को नहीं सुना गया था, बल्कि उसको ये बोलकर खामोश करवा दिया गया था कि तुम इस खानदान के बड़े पोतों की मंग हो, इसलिए खामोश रहो। उसने तय कर लिया था कि रात के अंधेरे में उसने क्या करना है। वो खामोशी से बिस्तर पर बैठकर अपने मंसूबे को मजबूत करने लगी थी। उसने मोबाइल उठाकर अपने बेहतरीन साथी असद को मैसेज किया था कि उसे उसकी ज़रूरत है, वो भाग कर गाँव की आखिरी हदूद तक आएगी और उसे गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचना है। उसके मैसेज करते ही जवाब मासूल हो चुका था कि वो उसका साथ देने के लिए तैयार है, और उसी पल उसके चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट आई थी। यही उसका मंसूबा मुकम्मल तैयार था। वो अब यहाँ से जा सकती थी, बस अब रात होने का इंतजार था। घड़ी की सुइयां टिक टिक के साथ आगे बढ़ रही थी, मगर उसे मालूम ही नहीं था कि उसका ये कदम उसके लिए कितना बुरा साबित होने वाला है। जमल खानजादी की जिंदगी किस तरह तब्दील होने वाली है, उसे इस चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। रात के साए ढलते ही उसने काला लिबास जेब तन किया था, ताकि अंधेरे में कोई देखे भी तो उसकी शनाख्त ना कर सके। हवेली की तमाम लाइट्स ऑफ हो गई थी, और यही वक्त था जब उसे तमाम मुलाजमों और गार्ड्स को चकमा देना था। वो बहुत होशियारी के साथ लाउंज अबूर कर गई थी और सीधा हवेली के पिछले हिस्से की जानिब आई थी। उसका दिल किसी बेलगाम घोड़े की मानी धड़क रहा था। क्या ये उसे करना चाहिए था? क्या उसके लिए ये ठीक था? ऐसे कई सवालात उसके दिमाग में गर्दिश कर रहे थे, मगर उसे मालूम था ये कदम उसके लिए बिल्कुल दुरुस्त साबित होगा। उसको अपनी जिंदगी संवारनी थी। वो बहुत खौफजदा भी थी, लेकिन आज इसे हर हाल में ये कदम उठाना था, वरना वो उम्र भर के लिए इस हवेली में कैद होके रह जाती। वो एक आज़ाद पंछी थी, उसे कैद बंद रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो यहाँ रहकर इन औरतों की तरह घुट घुट कर नहीं जी सकती थी। वो जमल खानजादी थी, जिसने हमेशा अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जी थी। उसका बाप जो एक खान था, मगर उसके बावजूद कभी उसके बाप ने उसे किसी चीज के लिए नहीं टोका था, क्योंकि उन्हें मालूम था जमल ऊंचे ख्यालात की लड़की है। उसे बेवजह की रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है, और उनकी बेवजह की ढील ने जमल को एक ऐसी जिंदगी की तरफ गामजन कर दिया था जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए फ्रेब और धोखा थी। वो बहुत ही एहतियात से हवेली की दीवार पर चढ़ गई थी। उसका हाथ तक छिल गया था, लेकिन उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो बस इस हवेली से निकल जाना चाहती थी। यहाँ उसका दम घुट रहा था, सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो रही थी। जो लड़की सारा दिन बाहर घूमती हो, रातों को लेट नाइट घर वापस आती हो, क्लब्स में जाती हो, पार्टीज करती हो, अपनी मर्जी की वो जिंदगी जीती थी। इस लड़की को अगर मुसलसल एक हफ्ते के लिए कमरे में बंद कर दिया जाए और 7 अहकामात जारी कर दिए जाएं कि कमरे से बाहर रहो तो सर ढांपो, शलवार कमीज जेब तन करो, खाना हमारी मर्जी से खाओ, कब सोना है ये हम सब मुंतखब करेंगे, ऐसी लड़की इस माहौल में जी ही नहीं सकती। उसने तमाम चीज़ों से थक हार कर ये फैसला किया था, मगर उसको मालूम ही नहीं था कि ये हवेली के मकीन इस पर किस तरह नजर गाड़े बैठे हैं। जो जैसे ही हवेली की दीवार से कूद कर बाहर को उतरी, उसने सुकून का सांस खारिज किया था। ऐसा महसूस होता था जैसे वो किसी कैद से रिहा हो गई हो। उस पूरी हवेली पर नजर डालकर वो भागना शुरू हो गई थी। उसे किसी भी तरह से इस हवेली से दूर जाना था। वो इस गांव का रुख भी नहीं करना चाहती थी। उसको मालूम था वो बआसानी इस मुल्क से दूर चली जाएगी। वो नहीं रह सकती थी। उसका मानना था कि यहाँ पर रहने वाली औरतें पागल हैं, उनके पास जीने की कोई उम्मीद ही नहीं है। जो उनके मर्द कहेंगे वो मानना उन पर लाजिम है, और वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मगर उसको मालूम ही नहीं था जिसके साथ उसको बांधा गया है, जिसकी मांग उसको करार दिया गया है, वो कौन है और क्या कुछ कर सकता है। वो मजीद आगे बढ़ती उससे पहले ही उसके सामने एक काली गाड़ी आकर रुकी थी, जिसमें 4 गार्ड्स मौजूद थे। उसके कदम वहीं जंजीर हो गए थे। उसका सांस ढोल की मानित चल रहा था। कदमों तले से उसकी जमीन निकल गई थी। ऐसा महसूस होता था जैसे सर पर आसमान गिर चुका हो। इतनी मेहनत के बाद भी वो वापस उसी जगह ही खड़ी हो गई थी जहां से शुरुआत हुई थी। क्या वो पकड़ी जा चुकी थी? और जैसे ही फ्रंट डोर खोला था, जिसको देखकर उसका ऊपर का सांस ऊपर
और नीचे का सांस नीचे रह गया था। सामने ही शाहनवाज खानजादा हाथ में बंदूक थामे खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर मौजूद गुस्सा ये बताने के लिए काफी था कि वो अब कुछ भी कर जाएगा। वो मजबूत कदम उठाता हुआ जमल के पास आया था। वो कुछ समझती या कोई रद्द अमल देती उससे पहले ही शाहनवाज का उसका बाजू अपनी आयनी गिरफ्त में थाम चुका था। उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि उसे वाज़ेह तौर पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी बाजू की हड्डी टूट चुकी हो। उसके चेहरे पर गराते हुए बोला था, तुम्हें क्या लगा तुम हमारी हवेली से भाग जाओगी और हमें इल्म तक नहीं होगा? तुम हमारी पठानी हो, हम मरते मर जाएंगे मगर अपनी इज्जत को इस तरह दागदार नहीं होने देंगे। ये कहते ही वो गाड़ी की तरफ बढ़ा था। जमल बहुत कोशिश कर रही थी कि वो किसी भी तरह उसका हाथ छोड़ दे, लेकिन हर बात पूरी हो जाए ये मुमकिन कहाँ होता है। वो घसीटता हुआ उसको गाड़ी के करीब लाया था और फेंकने वाले अंदाज में उसको अंदर डालकर गाड़ी लॉक करती थी। वो शीशा बजा रही थी, उसे बाहर आना था, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। गाड़ी में बैठते ही उसने गाड़ी जोर से भगा दी थी। उसका इरादा हवेली जाने का था, मगर चंद ही पल में उसने बैठे बैठे फैसला ले लिया था कि उसको क्या करना है। उसकी गाड़ी सीधा डेरे पर आकर रुकी थी। जमल ने चारों तरफ निगाह घुमाई तो ये जगह अजनबी थी। उसका सांस अब रुक रहा था। ये शख्स उसके साथ क्या करने वाला था? ये उसे ख़त्म करने के लिए यहाँ लाया था या फिर उसकी इज्जत खराब करना चाहता था? ऐसे कई सवालात उसके दिल में उठ रहे थे। वो फौरन शाहनवाज की जानिब देखते हुए बोली, मैं तुम्हारी बहन या माँ नहीं हूँ जो तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त करूंगी। गाड़ी खोलो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। बेवजह मेरे मुंह लगने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जबकि वो बिना उसकी तरफ ध्यान दिए बगैर गाड़ी से उतरा था। जमल को खींचकर गाड़ी से बाहर निकाला था और डेरे के अंदर दाखिल हो गया था। वो हाथ पांव मार रही थी, अपने आप को छुड़वाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, मगर शाहनवाज अंधा और गूंगा बन चुका था। डेरे में लाते ही उसने कमरे में उसे धक्का दिया था और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। वो पागलों की तरह दरवाज़ा पीट रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था उस दरवाजे को तोड़ दे, मगर उसमें इतनी जान नहीं थी कि वो उस मजबूत लोहे के दरवाजे को तोड़ पाती। थक हार कर वो वहीं दरवाजे के साथ बैठती चली गई थी। ये बैठे बिठाए वो किस अजाब में पड़ गई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चंद पल बाद शाहनवाज वापस आया था, लेकिन उस वक्त वो अकेला नहीं था। उसके साथ मौलवी साहब और चंद गवाह मौजूद थे। उसका बाप भी था और साथ में छोटा भाई भी था। उन तमाम लोगों को वो डेरे पर बिठाकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। सामने ही जमल सर में हाथ गिराए बैठी थी। उसके पास दुपट्टा तक मौजूद नहीं था, बाल उजड़े हुए थे। शाहनवाज ने जब से मुठियां भींची थी। ये लड़की उससे कौन कौन से इम्तिहान लेने वाली थी। उसने अपनी चादर उतार दी थी और उसके करीब आया था। जमल उसकी मौजूदगी में महसूस करते ही अपना सर उठा चुकी थी। शाहनवाज ने फैलाकर उसके सर पर चादर डाली थी। वो कुछ कहती या एहतजाज करती। शाहनवाज उसके करीब हुआ था और उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज में बोला था, अगर चाहती हो कि तुम्हारी इज्जत महफूज रहे और जिंदगी बची रहे तो खामोशी से मुझसे निकाह कर लो। अगर मेरी नफी की तो याद रखना, शाहनवाज खानजादा का असल रूप देखा तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। वो बुरी तरह फंस चुकी थी। उसको मालूम था अगर वो निकाह नहीं करती तो ये शख्स वाकई उसे कहीं का नहीं छोड़ता। कई बार वो अपने बाप के मुंह से भी शाहनवाज का जिक्र सुन चुकी थी कि वो किस तबीयत का इंसान है। वो कुछ कहती या सुनती उससे पहले ही वो घसीट कर उसे बाहर लाया था। वो लाख एहतजाज करती रह गई थी, मगर उसकी एक नहीं चली थी। और आखिर में जब उसके सर पर बंदूक रखी गई तो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए उसने खामोशी से कबूल है बोलकर अपने तमाम जुमले हकूक एक ऐसे शख्स के नाम कर दिए थे जिसके वजूद से उसे करियत महसूस होती थी। उस शख्स ने आज उसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर उजाड़ दी थी। हाँ, उसे उम्मीद थी कि वो इस हवेली से निकल सकती है, क्योंकि उसका किसी भी शख्स के साथ मजबूत रिश्ता नहीं है। मगर अब वो मुसीबत में आ चुकी थी। उसका मजबूत रिश्ता ही एक ऐसे इंसान के साथ हुआ था जो उसे आखिरी सांस तक छोड़ने वाला नहीं था। वो घसीट कर उसे हवेली लाया था। वो मुसलसल अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसे अपनी कलाई टूटती हुई महसूस हो रही थी।
وہ زبردستی اسے اپنے کمرے میں لے کر آیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی وہ اس سے دور ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے گرائی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے مجھ سے نکاح کر کے مجھے حاصل کر لیا؟ تم جانتے نہیں ہو زمل خانزادی کون ہے؟ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ اس کی بات سن کر شاہ نواز نے کہکا لگایا تھا اور یہ کہکا زمل کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی شخصیت پر لگایا جا رہا ہو۔ زمل کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی۔ وہ ہنستے ہنستے بستر پر لیٹ گیا تھا۔